Okay, so let me start. Let me continue the same topic. And in the last class, we were discussing about uncertainty principle and uncertainty relation. And this uncertainty principle was given by W. Heisenberg in 1927. And according to this principle, this Heisenberg's uncertainty principle. According to this principle, it is impossible to measure momentum and position of an atomic, subatomic particles, position and momentum of atomic, subatomic particles simultaneously and accurately. So it is impossible to measure the position and momentum of atomic, subatomic level particles simultaneously and accurately. एक साथ और एक्यूरेट मेजरमेंट अगर हम करना चाहते हैं किसी एटम का, किसी एटम या सब एटम का पोजीशन एंड मोमेंटम, तो ये पॉसिबल नहीं है. हमें कहीं किसी न किसी चीज पर हमें कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी. यदि हम चाहते हैं कि एक साथ मेजर करें, तो उसमें उसके उस मोमेंटम और पोजीशन के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होगा, एरर होगा, डेविएशन होगा. और अगर बाय अलग अलग अगर कोई मेजर करना चाहे तो एरर नहीं होगा, एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं. सो एक्यूरेटली दो टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है. वन टर्म इज एक्यूरेटली, सेकंड वन इज साइमल्टेनियसली. अगर एक साथ और एक्यूरेट मेजर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल. और यहाँ पर एक टर्म और है जो कि हमें ध्यान में रखना है, दिस इज ट्रू फॉर एटॉमिक, सबएटॉमिक लेवल पार्टिकल्स. अगर कोई हम मैक्रो ऑब्जेक्ट लेते हैं, बॉडी लेते हैं, रिजिड बॉडी लेते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स से रिलेटेड अगर कोई बॉडी लेते हैं, क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड बॉडी लेते हैं, तो इट इज पॉसिबल. वी हैव डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. एंड बाय यूजिंग दोस न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन वी कैन मेजर मोमेंटम एक्यूरेटली एज वेल एज इट्स पोजीशन एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी पार्टिकुलर टाइम लेकर हम मेजर कर सकते हैं. बट एटॉमिक, सबएटॉमिक लेवल पार्टिकल या क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना जिस पार्टिकल्स में हम सो कर मानते हैं, उस एटॉमिक, सबएटॉमिक लेवल पार्टिकल में ये दोनों को एक साथ एक्यूरेट मेजर करना पॉसिबल नहीं है. फिर हमने यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, अनसर्टेनिटी रिलेशन यहाँ पे लिखा था. द अनसर्टेनिटी रिलेशन एंड दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स दैट डेल्टा x multiplied by delta p in the same direction, px, it is greater than or equal to h cross by 2, where delta x is uncertainty or error, uncertainty in the measurement of linear position and the delta p, and I am writing here this px is uncertainty in the measurement of linear momentum. And this h cross, it is equal to h upon 2 pi, which is equal to 1.05 into 10 power minus 34. So this is uncertainty principle, and these two quantities, delta x and delta px, these two quantities are conjugate quantities. Last class में इस पर भी हमने थोड़ा इंटरेस्ट देने की कोशिश किया था. क्यों? क्योंकि हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन h cross by 2 है, which one is the real one? ये इसका numerical value है, and this is one real quantity. So the multiplication of these two, it is a real quantity, means these two are conjugate quantity. So one can write here delta x and delta px are conjugate
quantities. We should mention separately. And now we can extend this relation for some more conjugate quantities. हमने ये यहाँ पर सिर्फ हम मोमेंटम और लीनियर पोजीशन की बात कर रहे हैं, हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं. And this relation is also true for, नोट कर रहे हो कि मिटा दूं? सर 2 मिनट सर कल की क्लास में होगा. एक बार और कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, हमारे नोट्स में रिपीट हो जाएगा थोड़ी देर. हो गया सर. हो गया? ओके. So the uncertain relation is also true for some more conjugate quantities. ये जो है कुछ और conjugate quantities के लिए सही है. For example, at delta t multiplied by delta e, it is also greater than or equal to h cross by 2. Delta theta and delta j, this is greater than or equal to h cross by 2, where delta t is the uncertainty or error in the division in the measurement of time, and this delta E, it is uncertainty in the measurement of energy. So the multiplication of these two uncertainties, this is greater than or equal to h cross by 2, and this delta theta is angular position. This is the measurement, uncertainty the measurement of angular position. This is angular position, this is linear position, delta x, and this delta z, this is uncertainty in the measurement of angular momentum. And one can derive this relation, by checking that delta x and delta p. इन टर्म को लेकर के हम इसको derive कर सकते हैं. If you want, you can try. आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को आपको डेल्टा थीटा और डेल्टा जे में कन्वर्ट करना है. तो हमारे पास एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन में रिलेशन पता है. दैट डेल्टा थीटा एंगुलर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दैट थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस. तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाय r. डू यू नो दिस? एंगल का डेफिनेशन से आता है. सर्कुलर मोशन में तुम लोगों ने किया होगा, या एंगल का डेफिनेशन में कहा जाता है दैट एंगल इज व्हाट? दिस इज दैट आर्क अपॉन रेडियस. सो दिस डेल्टा एक्स, दिस इज आर्क अपॉन रेडियस, सो दिस इज डेल्टा थीटा. इन लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में भी तुम्हारे पास रिलेशन है. उन दोनों को अगर तुम फिट कर दोगे तो ये वाला रिलेशन आ जाता है. तो ट्राई योरसेल्फ, तुमको ये करना चाहिए. थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होनी चाहिए. मुझे डेल्टा पी और डेल्टा एक्स मल्टीप्लिकेशन को इसमें कन्वर्ट करना है. तो चलिए इसको मैं असाइनमेंट के फॉर्म में रख रहा हूँ. यूज आइदर गूगल और यूज बुक्स अवेलेबल यू हैव इन सॉफ्ट कॉपी. आई हैव गिवन दैट चैप्टर. सो derive this using the relation delta x multiplied by delta p, it is greater than equal to x cross by 2. इसको फंडामेंटल रिलेशन मान करके इन दोनों रिलेशन को तुमको ड्राइव करनी है. So you have to convert that momentum into energy, and that displacement that is with t. So
थोड़ा बहुत अगर कोई लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स करोगे तो वो इजीली आ जाता है, बहुत टिपिकल नहीं है ना। सो यूज गूगल। ओके, यहां तक हो गया। Yes, sir. हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. गिव द रिस्पांस। हाँ, Yes, sir. should I proceed? Okay, so Yes, sir. this is uncertainty principle and the given uncertainty relation. तो तुमको जब uncertainty principle कहा जाता है तो तुमको उस स्टेटमेंट के साथ ये रिलेशन भी देना है, और सिर्फ uncertainty relation अगर है तो these are like uncertainty relation of in between two conjugate quantities. कुछ एप्लीकेशन पर डिस्कस करके देखें। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन का एप्लीकेशन से हम फिजिक्स में क्या सीख सकते हैं। सो सम गुड एप्लीकेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेशन। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी। कीप योर कैलकुलेटर विथ यू। कुछ डाटा जो तुमको देना है और कैलकुलेट करके तुमको मुझे आंसर बता देना है। So one of the best application of this Heisenberg's uncertainty relation or uncertainty principle is to locate electrons. हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, बोर्ड्स मॉडल पढ़ते हैं, तुम लोग को बोर्ड्स मॉडल का आइडिया होगा। So in the atomic structure, this is that nucleus where Z numbers of protons are there and A minus Z numbers of neutrons are there inside the nucleus, and electrons are moving around. Electrons are moving around this nucleus. This is Bohr's model, and these electrons are moving in specific energy values. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक एनर्जी वैल्यूज पे ये चक्कर लगाते हैं, और न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमें इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन को लेकर के हमें प्रूफ करनी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। गेट द पॉइंट? हमें ये प्रूफ करनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अंतर्गत नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना होगा देखें, या मैं ये कहता हूं कि आई एम जस्ट गिविंग टू स्टेटमेंट्स। मैं तुमको दो स्टेटमेंट दे रहा हूं और दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है, कितना सही है, इसको हमें वेरीफाई करना है बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। दिस इज वन मॉडल, दिस इज बोर्स मॉडल। Bohr's model. So this is nucleus having the numbers of protons and neutrons inside which, and electrons are revolving in a particular energy levels around this nucleus. The first model. Second one is related to concept of beta particles. नाम सुने beta particles? Beta particles in radioactivity.
radioactive elements, materials. ध्यान आ रहा है? बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, गेमा रेस, रेडियो एक्टिविटी वगैरह कभी पढ़े हो? यस सर, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक था। वो तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पढ़ाते हैं ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वहां से उसमें 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। एक अल्फा पार्टिकल्स होता है, है ना, दूसरा बीटा पार्टिकल्स होते हैं, और थर्ड जो रहता है दैट इज गेमा रेस। गेमा रेस होते हैं, गामा रेस। ठीक है। इसमें अल्फा पार्टिकल जो है दिस इज एक्चुअली हीलियम आयंस, ये हीलियम आयंस होते हैं। और बीटा पार्टिकल्स होते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ये माना जाता है। एंड दिस इज जस्ट वेव्स, सो दिस इज एनर्जी वेव्स, सो दिस इज एनर्जी वेव्स, गामा रेस। ये तीनों किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से भी ये बाहर निकलता है। दिस इज द न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। So this alpha particles, this is coming from this nucleus. Even that beta particles, this is also emitting from a nucleus. And the third one, that gamma rays, these are also coming from the nucleus. ये nuclear properties हैं, ये nucleus से बाहर निकलता है। Okay, अब यहाँ पर कंट्राडिक्टरी क्या है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। कंट्राडिक्टरी क्या है? फर्स्ट बोर्स मॉडल में हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस में नहीं होता है। सेकंड, ये कहा जाता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस बाहर निकलते हैं। ये न्यूक्लियर फेनोमेना है। और इसमें से आउट ऑफ दिस थ्री, दिस बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स है। व्हिच वन इज ट्रू? और अगर कोई ये कॉन्ट्राडिक्टरी है तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, सही आंसर हमारे पास आना चाहिए कि वास्तव में बीटा पार्टिकल वही इलेक्ट्रॉन है जो कि ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, clarify these contradictory statements by using Heisenberg's uncertainty relation. यहाँ पर मेन जो डिफरेंस आता है that is the difference in energy. हम दोनों का एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो बीटा इलेक्ट्रॉन्स हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं, इसकी एनर्जी 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं। ये ध्यान रखिए, बीटा पार्टिकल्स की जो एनर्जी होता है वो 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, जो कि न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। अब हम पहले ये एज्यूम करें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है और उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करें। What we have to assume? We have to assume that electrons are inside the nucleus and we have to calculate the energy of that nucleus. So let us start mathematics. So first, let us assume that electrons are inside the nucleus. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। अब उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज दैट इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। डू यू नो द साइज ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का रेडियस वगैरह के बारे में जानते हैं? किसी को कोई आइडिया? नो सर। एवरेज साइज ऑफ न्यूक्लियस? नो सर। यहाँ पे लिख देते हैं। सो द एवरेज साइज ऑफ न्यूक्लियस is in the order of 5 into 10 power minus 15 meter. 2 से 5 के बीच में लिया जाता है, मैं मैक्सिमम साइज को ले लिया हूं। So the size of nucleus, the diameter of nucleus in between, that is approximately equal to 5 into 10 power 15 meter. जनरली रेडियस जो है 2.5 लिया जाता है, मुझे डबल लेना है, so that r naught just लिया जाता है, that is 2.4
और 2.5 into 10⁻⁻15 मीटर ये रेडियस होता है। मुझे यहाँ पर डायमीटर लेना है, so the diameter will be equal to just double of this. That's why I am taking this is equal to 5 into 10⁻15 meter. So the diameter of this nucleus, average size of the nucleus is this. अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम इस न्यूक्लियस के अंतर्गत मान रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, वो मोशन को कहीं पर भी वो रैंडमली मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंतर्गत ये हमने एज्यूम करके रखा हुआ है, तो उसके पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगा, दैट अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इट इज इक्वल टू दिस। ओके, सिंस just write one line, since electron is inside the nucleus, so uncertainty in its position, that is delta x, it is equivalent to the diameter of this. This is 5 into 10⁻⁻15 meter. Just think about this. इसको कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, is it true or not? हाँ, समझ में आ रहा है कि कुछ इसमें बात करनी है? आदित्य सर सोच रहा हूँ। सोच रहे हो? गुड वन। देखो एक बार मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या एज्यूम करके रखा हुआ है, हमने ये एज्यूम किया है। सर लास्ट स्टेटमेंट, आई एम जस्ट आई एम रिपीटिंग। मैंने क्या कहा, हम लोग ये मान के चलें, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है, मतलब न्यूक्लियस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन है, ये हम मान रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अंतर्गत कहां पे होगा? अब यहाँ पर तो कोई फिक्स है नहीं, न्यूक्लियस तो इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक उसका न्यूक्लियस, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ किसी, लेकिन मैक्सिमम साइज न्यूक्लियस का जो है वो 5 into 10⁻⁻15 मीटर है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का दिया हुआ डाटा है। न्यूक्लियर फिजिक्स में एटम का एक एवरेज रेडियस बताया जाता है, उस रेडियस के बेसिस पर दैट एवरेज रेडियस इज इन बिटवीन 2 to 2.5 into 10⁻15 मीटर, जिसको फर्मी के नाम से जानते हैं, है ना। So 1 Fermi is equal to 10⁻15 meter, so 2.5 10⁻15 meter is the radius। मैंने इसको डबल कर दिया तो ये डायमीटर आ गया। So the diameter of this nucleus is this, means ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है, मिनिमम यहाँ तक। मतलब उसके पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगा, जिसका डेल्टा x, that is equal to the diameter of this nucleus। अब इसको अनसर्टेनिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इट्स नॉट सर्टेन, इट्स नॉट फिक्स्ड कि वो कहां पे है, एग्जैक्टली कहां पे है ये नहीं मालूम, इसलिए हम कह रहे हैं वो अनसर्टेनिटी और मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, दैट डेल्टा x इज इक्वल टू diameter of this, that's why this delta x is equal to, we have taken this is 5 into 10⁻15। now you have to calculate its momentum, कि अगर वो कहीं पर भी अगर कोई वो मोशन में है तो उसका मोमेंटम की वैल्यू कितना होगा। so calculate momentum by using uncertainty relation। So by using uncertainty relation, what we have, this is delta x multiplied by delta px, it is greater than or equal to h square by 2। delta px you have to calculate delta px, जल्दी बताओ मुझे कितना आ रहा है। You know this h cross is equal to where h cross is equal to 1.054 or 0.5 just into 10⁻34 joules second। delta x यहाँ पे आ गया है, just put the value and calculate delta px। So 1.05 into 10 to the power minus 20। 1.05 05 into 10 to the power minus 20। so minus 20।
बाकी लोग भी चेक करो, इसका यूनिट बताओ, यूनिट चेंज लिखो इसको। मोमेंटम को यूनिट बोलो जल्दी। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ, mass multiplied by velocity, so this is kilogram meter per second. जल्दी make a habit to write physical quantities with proper unit, कहीं पर भी इसको छोड़ना नहीं, ये हैबिट में होनी चाहिए। कभी भी डाटा जैसे पूछा जाता है तो गिव द आंसर विथ प्रॉपर यूनिट। सो दिस डेल्टा px is equal to 1.05। ये सभी से डाटा आ रहा है, तुम्हें चेक करना है, बाकी लोग इसको वेरीफाई करो भाई। 1.05 into 10 to the power minus 20. सिफांजुम, आरुषि बोलते जाओ आंसर जल्दी जल्दी, जिसका आते जा रहा है। कैलकुलेट करके देखना, ब्लाइंडली किसी पर भरोसा नहीं करना। सर कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ ओके ओके, हरी अप, आई एम जस्ट वेटिंग। आ रहा है सर, आ गया, यही आ रहा है। ये आ रहा है, यही आ रहा है सर। 1.05 into 10 to the चलिए power इसको minus फिक्स करते हैं। सो दिस वैल्यू इज ओके। तुमने कैलकुलेट किया भाई, मैं तो डाटा दिया हूँ, कैलकुलेशन जो है तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे कैलकुलेटर के ऊपर। So this delta px, this is 1.05 into 10 to minus 20 kilogram meter per second, and this is that uncertainty in the momentum. Now we can calculate energy. So the energy of electron can be calculated is equal to this delta E is equal to delta px multiplied by c. See the speed of light. So put the value of this c and this and give that energy. अब एक बार फिर मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो हाई इनफ है और इतना ज्यादा है कि इसके वेलोसिटी जो है वो रिलेटिविस्टिक रीजन पे आएगा। अदरवाइज तुम एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन होता है उसका यूज करना चाहिए था, ऐसा कहोगे। एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का सिर्फ पता है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन? एनीवन? What is the relationship between kinetic energy and momentum? किसी फार्मूला याद नहीं आ रहा है? K equals to 1 root upon over under 2 root 2m. 2kp. That energy E it is equal to P square by 2m. ये रिलेशन पढ़े हो? न्यूटन फिजिक्स में आता है। या P is equal to root of 2me। कोई कहने की कोशिश कर रहा है। वही बोल रहा था। हाँ यस, आदित्य तुम कह रहे हो। So E is equal to P square 2m। So एनर्जी जो है इस फार्मूला से हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि P की वैल्यू जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है और वो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में कुछ गया है, ये न्यूटोनियन फिजिक्स का पार्ट है। अगर वैल्यू बहुत कम होता तो हमें इसको यूज करना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये ज्यादा है इसलिए हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में चले जा रहे हैं। और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन जनरली ये होता है। सो डेल्टा इज इक्वल टू रूट पी सी एंड वैल्यू रखो और रख करके बताओ। सर एनर्जी आ गई 3.15 into 10 to the power minus 12 जूल। So this is just give answer 3.15 3.15 into 10 to the minus 12 जूल। बाकी लोग वेरीफाई करो भाई। C की वैल्यू 3 into 10 power 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। अरे आरुषि तुम्हारा पिछले वाला भी आंसर तुमसे नहीं मिला था मुझे। दिव्या सर कर रही हूँ। कर रहे हो, करो करो जल्दी जल्दी जल्दी। मानव त्रिपाठी सर यही आ रहा है। ये आ रहा है? यस सर। मानव तुम्हारा? यस सर, कर रहा हूँ सर। हाँ करो करो जल्दी जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग।
मतलब तुमको वेरीफाई करना, ऐसा नहीं है कि आंसर लिख दिया और आंसर लिख दिया तो उसको उतार लिया, ऐसा मत करना, वो हैबिट नहीं होनी चाहिए। तुमको वेरीफाई करना है, उससे कॉन्फिडेंस आता है कि जो लोगों ने किया है मुझसे भी वही आ रहा है। अगर डिफरेंट आ रहा है तो हम इनको भी बोलेंगे भाई तुमने जो किया है वो गलत है। मेजोरिटी यहाँ पर हम चेक करेंगे किसका सही है। राहुल शर्मा। सर मेरा उसमें कंफ्यूजन है, -12 नहीं आता। -12 नहीं आ रहा है, ट्राई करो, चेक करो। देखो p की वैल्यू जो है वो 10⁻⁻20 है, ये तो 10 किसमें रहेगा, 3 × 10⁸ रहेगा, 10 रहेगा, क्या रहेगा 3 × 10⁸ ना, तो 3 × 10⁸ तो यहीं से दिख करके आ रहा है, तो और तुमको 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। यस सर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मेरे ख्याल से, ये तो इसके लिए कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। So without calculator कैलकुलेट कर लिया। हाँ वही, विदाउट कैलकुलेटर इसको कैलकुलेट किया जा सकता है ना। तो 3 × 15 × 10⁻12 जूल। अब ये -12 जूल ये थोड़ा सा बहुत छोटी क्वांटिटी लग रही है, इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी चाहिए। So convert this into electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है? 1.6 into 10 to the power minus कुछ है उससे डिवाइड कर 19। So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 -19 जूल। तो एक जूल, यहाँ पर जूल में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, so 1 joule is equal to, this will be denominator, so delta E this is equal to 3.15 into 10⁻12 जूल। इसको हमें कन्वर्ट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, so 1.6 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ गिव द डाटा। (1.8 into 10⁻⁻6). माइनस सॉरी सर, प्लस। प्लस, हाँ और वो 7 होगा सर, 1.8 into 10⁻7 eV। so it's a 1.8 into 10⁻7 electron volt। बाकी लोग भी सर चेक करो। मेरा हाँ, सर मेरा 1.9 into 10 1.9 आ to रहा the है power बस। 7 ये 1.9 आ रहा है। 1.96 आ रहा है। 1.96 very good into 10 to the so power 1.96 into 10⁻7 electron volt, or this is equal to 1.96 into 10 multiplied by 10⁻6 electron volt, और 10⁻6 electron volt को कहा जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। so this is 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर हमने कन्वर्ट क्यों किया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? जनरली जो डाटा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड या न्यूक्लियर से रिलेटेड जो एनर्जी होता है, तुम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में काट यूनिट पढ़ा होगा, काफी पढ़ा होगा, उसमें मैक्सिमम एनर्जी जो है वो उसी यूनिट में लिखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, इस तरह की बातें आती हैं, है ना। तो जूल में जो एनर्जी वैल्यू होता है वो बहुत ही कम रहता है, -12 के आधार में जूल में एनर्जी दिखा रहा है ना। तो उसको एक डिस्टिंक्ट लेवल तक लाने के लिए किसी पार्टिकुलर फिजिक्स के फील्ड में उस एनर्जी नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। सो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड एनर्जी हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, इसलिए मैंने इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कराया है। ठीक है, डाटा जो दिया रहता है बुक्स वगैरह में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहता है। तो दैट इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को अगर कोई माने कि न्यूक्लियस के अंतर्गत अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मींस अबाउट 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। जबकि बीटा पार्टिकल्स whereas the energy of beta particles is in the range of is about 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मैंने शायद पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया था क्या, इट्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, रिमेंबर। So the energy of beta particles that is in the range of
2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब हो रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो हम एज्यूम कर रहे हैं बाहर जो है ना, जो घूम रहा है वो न्यूक्लियस के अंतर्गत होगा, ये पॉसिबल नहीं है। वो जो बीटा पार्टिकल जो निकल रहे हैं वो बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी जो है सिर्फ 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, और ये 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मींस वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हो सकता न्यूक्लियस में। यहाँ पर दो चीज का प्रूफ हो रहा है। पहला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता, फ्रीली अवेलेबल नहीं हो सकता वैसे जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज तो हैं, लेकिन उसकी एनर्जी जो है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो इंटर न्यूक्लियर रिएक्शन का रिजल्ट है। ये बीटा पार्टिकल्स एक्चुअली आता कहां है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में समझाया जाएगा। मैं थोड़ा सा अगर ये कंप्लीट हो गया हो तो उसका फेनोमेना हम हल्का सा डिस्कस कर लें फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। हां, यहां तक हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। सो ये बीटा पार्टिकल जो है, मोशले का नाम सुने हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो, मोशलेस लॉ, पीरियोडिक टेबल। सुना लगता है ना? हाँ, यस। मेंडलीव। Yes, sir. Yes, sir, पढ़े हैं। उसमें आता है मोशले। मॉडर्न टेबल दिया है। जो बीटा पार्टिकल्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये बीटा पार्टिकल्स, दीज आर नॉट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता तो इसकी एनर्जी कितनी होती? 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन में 220 मेगा इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता। तो ये बीटा पार्टिकल्स क्या है? दिस इज the product of a byproduct of a reaction between proton and neutrons. This is the reaction, this is the product, a byproduct of रिएक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें कहा जाता है कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है बाय गिविंग वन इलेक्ट्रॉन। ये लोग, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो रहते हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन को इसको वॉलीबॉल की तरह खेलते रहते हैं। कैसे? एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू वन प्रोटॉन। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक ये न्यूट्रल है। तो एक न्यूट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन फेंका, वॉलीबॉल में जैसे बॉल फेंकते हैं ना, वैसे एक इलेक्ट्रॉन फेंका है ना, और वो खुद जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। जैसे एक न्यूट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन वॉलीबॉल की तरफ फेंका, जैसे उसने इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकाला, उसको फेंका, वैसे ही वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। और एक प्रोटॉन जैसे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इट बिकम्स वन न्यूट्रॉन। ये जो है वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिद्धांत प्रसाद अभी कैसे ज्वाइन कर? सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर। तो मतलब ये साइमल्टेनियसली हमेशा चलता ही रहता है या फिर ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूएशन में चलते रहता है। ये प्रोसेस जो है हर न्यूक्लियस के अंतर्गत प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में इंटर कन्वर्सन चलते रहता है। एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन फेंका, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, एक प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट किया, व्हाट आई एम सेइंग, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। एक न्यूट्रॉन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को अगर कोई अपने से बाहर किया, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। मींस यहां पर मैं इसको डायग्राम की तरह अगर कुछ हम इसको शो करना चाहें, सर, तो उन्हें एनर्जी कहां से मिलती है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की? न्यूक्लियर एनर्जी है अवेलेबल उसके पास, है ना। सो दिस इज वन प्रोटॉन, दिस इज वन न्यूट्रॉन। ओके, इसने एक इलेक्ट्रॉन जंप के बाहर निकाला, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाला, ये कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, ये प्रोटॉन बन गया। इस इलेक्ट्रॉन को जैसे इसने एक्सेप्ट किया, ये कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। इसके बाद फिर से ये अपने से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ये कन्वर्ट हो गया फिर से प्रोटॉन में, और इसको जैसे इसने एक्सेप्ट किया, ये कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच इंटर कन्वर्सन चलते रहता है। वो लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसा वॉलीबॉल फेंकते रहते, खेलते रहते। जब रेडियो एक्टिव, ये सारे न्यूक्लियस के लिए कहा जाता है ये सही है, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है।
उसकी एनर्जी कम होती है, अनस्टेबल होता है सर वो। हाँ जी, इससे नंबर ऑफ वो किसी भी एटम में नंबर ऑफ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, कितने उससे नंबर फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल सम जो तुम लोग पढ़ते हो ना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फिक्स्ड। और ये जो टाइम जो रहता है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेने देने का टाइम, ये बहुत माइक्रोसेकंड्स में रहता है, बहुत कम रहता है। लेकिन जब ये लोग ज्यादा जोश में आ जाते हैं और ज्यादा जोश में आने के बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जोर से अगर को फेंक दिया गया क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो वो बीटा पार्टिकल्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, जैसे द थ्योरी, ये थ्योरी दिया जाता है। और उसकी एनर्जी जो है 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड दिस इज ट्रू फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ओनली। अनस्टेबल न्यूक्लियस के लिए सही है, जहां पर न्यूक्लियस जो है वो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस तुम लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन अगर कोई बाकी सारे न्यूक्लियस में, इवन दैट इन द केस ऑफ दैट नाइट्रोजन, इन द केस ऑफ दैट सोडियम, सारे न्यूक्लियस के लिए सही है, सभी न्यूक्लियस में ये चल रहा है। दिस इज द थ्योरी गिवन इन द न्यूक्लियर फिजिक्स। सो बीटा पार्टिकल्स आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ the interconversion of protons and neutrons, means proton neutron में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन का लेना देना इनके बीच में चलते रहता है। ओके, दिस इज अ थ्योरी। ओके, सो आई थिंक एक ही क्लास में आज तो खत्म हो गया। ओके, सो दिस इज वन स्टेटमेंट which is proved, which is actually rectified by Heisenberg's uncertainty relation कि न्यूक्लियस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हो सकते। और ये जो बीटा पार्टिकल्स के बारे में कहा जा रहा है, दैट बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ इंटरकन्वर्शन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सेकंड, तुम लोगों के लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम दे दिया रहता हूं। कैलकुलेट the energy of electron of first Bohr orbit of hydrogen. हाइड्रोजन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, इसकी एनर्जी तुमको कैलकुलेट करनी बाय यूजिंग द सेम मेथड। वहां पर थोड़ा देख लेना मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ रही। मोमेंटम की वैल्यू बहुत कम आ रही है तो तुम यूज कर सकते हो p²/2m। मोमेंटम की वैल्यू अगर कुछ ज्यादा आ रही, जैसे -22 के ऑर्डर में हमने ले लिया था, तो तुम डायरेक्टली एनर्जी को यूज कर सकते हो, दैट इज इन p × c। इसके लिए क्या करोगे, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज न्यूक्लियस। ये हाइड्रोजन का केस है और हाइड्रोजन का रेडियस तुमको शायद पता होगा। फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, किसी को आइडिया हो? रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट कितना होता है? एक कॉमन फार्मूला का यूज किया जाता है, तुम लोगों ने किया होगा। क्या दिया है, चलिए हम लिख देते हैं। दिस इज R0 is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्या है, n² से मल्टीप्लाई करके रखे रहते हैं। So this R0 is equal to 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस इज रेडियस, ये रेडियस है। सो अनसर्टेनिटी जो होगा इसका पोजीशन भी यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी डेल्टा x जो होगा, दैट डेल्टा x इज इक्वल टू 2r0। ये 2r0 के बराबर इससे पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। मोमेंटम कैलकुलेट कर लेना, एनर्जी निकाल लेना, ठीक है? यस सर, मैंने हिंट भी दे दिया। दूसरा, यहाँ पर अगर कोई इसका लाइफ टाइम की वैल्यू दिया गया है, तब भी उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। So the lifetime of this electron, second, the lifetime of the electron, this is in the order of time for 5. I think I should check the data somewhere it's given. Okay, so the lifetime of this electron is that delta t, t is equal to 2.5 into 10⁻⁻14 seconds। बहुत कम इसका लाइफ टाइम होता है किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर, ये कह सकते हो, है ना? वो फिक्स नहीं रहता, बहुत कम टाइम तक रहता है। So this is delta t, that is 2.5 into 10⁻15 second। So you can also calculate energy। इसके लिए कौन सा यूज करोगे? Calculate energy।
तो इसके लिए यूज करोगे दैट डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू। दोनों को कंपेयर करके देखना है ना क्या कहता है। हो सकता है दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दो डाटा मैंने ले लिया है और यू कैन कैलकुलेट। नाउ एनी क्वेश्चन? सर वो लास्ट में क्या लिखा है, कैलकुलेट एनर्जी? Calculate just energy and this is the formula जो uncertainty relation है ना, delta T multiplied by delta E it is greater than or equal to h plus by 2 जो uncertainty relation हमने एनर्जी और टाइम का बताया वही है ये, है ना? यस सर। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोर ऑर्बिट हमने दे दिया, बोर ऑर्बिट का रेडियस है, तुमको अनसर्टेनिटी रिलेशन जो डेल्टा h डेल्टा p है उससे कैलकुलेट करके देखना है ना। अब वहां पर मैंने पहले ही कहा है कि जो एनर्जी का रिलेशन है तुम्हारे पास दो है ना, एक रिलेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा p मल्टीप्लाइड बाय c, ये रिलेटिविस्टिक है जो अभी जब हमने यूज किया था। दूसरा एनर्जी का रिलेशन हो सकता है दैट डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा p स्क्वायर बाय 2m, ये न्यूटोनियन रिलेशन है। अगर मोमेंटम अगर कुछ कम लगा, बहुत कम 10 से माइनस 34 35 ऐसा अगर कोई दिख रहा है तो यूज दिस, या दोनों में करके देख लेना कितना डिफरेंस आता है, तुमको पता चल जाएगा रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक। ये जनरल इंटरेस्ट की बात होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे तुमको इसको यूज करना है, दोनों यूज करके देखना चाहिए इसमें, तो इससे पता चलेगा न्यूटोनियन फिजिक्स में और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में कितना डिफरेंस आता है एनर्जी में। और रिमेंबर दिस, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी एनर्जी वैल्यूज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी यहां पर जूल में आएगा, लेकिन आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके आंसर लिखनी है। ओके? यस सर। यस सर। Yes, sir. प्लीज कर दे। टाइम हो गया। ओके ओके, चलिए ओके, ठीक है। Thank you, sir. थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir.